بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفرقان المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کسی کو کوئی بتا سکتا ہے کہ کل ہم نے اس سے پہلی والی کلاس میں کیا بات کی تھی؟ اس سے پہلی والی جو کلاس ہوئی تھی لاسٹ، اس میں کیا بات کہی گئی تھی؟ آخر میں ہم نے کیا بات کہی تھی؟ کون سی باتیں بتائی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ جی نشاط فاطمہ بتائیں. جی آغا آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کا جو سلسلہ تھا وہ 20 سال تک یعنی قرآن نازل ہوا، اور سبب نزول کیا تھا قرآن کا، اور شان نزول کیا تھی، اور کون سا سورہ مکی کہا جاتا ہے، کون سا مدنی، اور قرآن کے کچھ نام بتائے تھے، 4 نام، جیسے کہ فرقان، ذکر، کتاب اور قرآن مجید، اور حروف قلقلے کے بارے میں بتایا تھا. تو ہم نے اس دن یہ بتایا تھا قرآن کے 4 نام کیا کیا ہیں. سب سے آخر میں یہ بات کہی تھی قرآن کے 4 نام کیا کیا ہیں اور یہ نام کہاں پر ذکر ہوئے. تو ہم نے بتایا تھا کہ قرآن میں ہی ان ناموں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. کچھ آیتوں میں کہیں پر قرآن مجید کے نام سے پکارا ہے اس کو، کہیں فرقان کے نام سے پکارا ہے، کہیں پر کتاب کے نام سے پکارا ہے، اور کہیں پر ذکر کے نام سے پکارا گیا ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کیسے تشخیص دیں گے، یعنی معیار کیا ہے ہمارے پاس کہ کسی سورے کو مکی کہنے کا اور مدنی کہنے کا. لوگوں کی الگ الگ رائے تھی. جو ہم نے بتایا تھا کہ معیار زمان ہے، زمان کو دیکھتے ہیں یا مکان کو دیکھتے ہیں کہ آیت کہاں پر نازل ہوئی ہے، یا آیت کس سے خطاب کرتی ہے اس کا، یا اس کا جو ہے وہ مخاطب کون ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس معیار پہ ہم بتاتے ہیں کہ سورہ مکی کون سا ہے اور مدنی کون سا ہے. اب بات یہ آئے گی کہ قرآن میں کتنے سورے مکی ہیں اور کتنے مدنی ہیں. تو قرآن میں جو ہے وہ ٹوٹل کتنے سورے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن میں ٹوٹل سورے کتنے ہیں؟ 30. جی کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں. کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ 114 سورے ہیں. 30 نہیں ہیں بلکہ 114 ہیں. 114 سورے ہیں ٹوٹل.
इसमें तमाम मुसलमान इत्तेफाक राय रखते हैं, ये इतना ही सूरे हैं, कोई चेंजिंग नहीं हुई है कहीं पर भी। और फिर सूरे, अच्छा जब इतने सूरे टोटल हैं तो इसमें मक्की कौन से हैं और मदनी कौन से हैं? तो टोटल में से 86 सूरे ऐसे हैं जो मक्की सूरे हैं और 28 सूरे ऐसे हैं जो मदनी सूरे हैं। अब एक बात आती है कि कुरान का नाम, कुरान इसको क्यों कहा गया है, इसको कुरान के नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसका मतलब क्या है? तो कुरान जो है वो काफ, रा और वाह, हुरूफ असली इसके, यानी जो मेन हुरूफ हैं काफ, रा और वाह, इससे बना हुआ है। इसका माना यानी करावा से है। इसका माना क्या है? इसका ये माना ये है कि कुछ चीजों को किनारे हम रखना, एक लाइन में एक साथ रख देना, इसको कहते हैं, इसका माना है किनारे हम रख देना। तो हम कुरान को जो है वो इससे क्यों, ये कुरान क्यों कहते हैं किनारे हम, इसमें क्या चीज आई हुई है? तो कहते हैं जब कारी जब तिलावत करता है तो क्या करता है, कुछ कलमात को, कुछ हरफों को क्या करता है, किनारे हम रखता है और उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद वो तिलावत करता है। जैसे अभी हमने किया, कुल अलग है, औज़ो अलग है, बेरब्बी अलग है और फलक अलग अलग है। लेकिन जब हम तिलावत करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, यानी हम एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको कुरान कहा गया है, क्योंकि तमाम हम कलमात को और हरफों को एक साथ मिला के तिलावत करते हैं। अब दूसरी बात आएगी, ठीक है कुरान का हमें माना पता चल गया, कुरान क्यों कहा जाता है। दूसरी बात ये कि सूरे का क्या माना है? तो सूरा जो है वो सवारा से निकला है, सीन, वाव और रा से निकला हुआ है। इसके कई माना है, 3 माना है। पहला माना क्या है, दीवारें बुलंद, एक ऊंची दीवार जब शहर की होती है तो वो शहर को एक मुशक्कस करती होती है, शहर को एक बताती है कि ये शहर यहाँ तक है, उसकी हद बताती है। इसी तरीके से सूरा आके एक चीज की, एक आयत की, कुछ आयतों की हद बताता है कि ये यहाँ तक है, ये बात यहाँ तक कही गई है। उसी दूसरा क्या है, दूसरा मंजिलत और शरफ के माना में, यानी हर आयत मंजिलत रखती है, एक शरफ है उसका। जैसे सूरह अल-हम्द का अलग शरफ है, सूरह बकरा का अलग शरफ है, उसकी अलग एक मंजिलत है, सूरह यासीन की अलग एक मंजिलत है। तीसरा माना क्या है, तीसरा माना पारे के माना में, यानी हिस्सा, एक जुज। तो तमाम सूरे जो है वो कुरान का जुज है, हिस्सा है, उस माना में भी सूरा कहा जाता है। अब जब सूरे की बात आ गई तो आयत को क्या, आयत क्यों कहा गया, आयत का क्या मानी है? तो आयत की जब हम मानी में जाएंगे, आयत का मानी है अलामत, निशानी, निशानी के माना में है। और जैसे जैसे लिए आयतुल्लाह को कहते हैं आयतुल्लाह, यानी क्या, यानी खुदा की निशानी। इसी तरीके से कुरान भी खुदा की निशानी है, इसलिए आयत, एक एक आयत अल्लाह की निशानियों में से है, उसकी मंजिलत, उसके शरफ को, उसके मकाम को बताती है। तो और दूसरी क्या है, और दूसरी क्या वजह, दूसरी ये कि आयत जो एक निशानी बताती कि ये बात यहाँ तक खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट बात आएगी। जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं, रुकने की निशानी होती है। तो हमने ये बातें की, और आपको कोई इसमें सवाल, किसी को कोई मुश्किल? कोई सवाल है किसी को, जो अभी तक जितनी बात हमने बताई किसी को ना समझ में आई हो? सारी बातें सबको समझ में आ गई? अब शुरू करते हैं, क्योंकि उस दिन हम जो है वो तर्जुमा नहीं बता पाए थे। तो आइए सबसे पहले सूरह फलक का जो 113th सूरा है उसके तर्जुमे की तरफ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। इसके नाम से शुरू कर रहे हैं, अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, जिसकी रहमतें बुजुर्ग भी हैं, बड़ी भी हैं और हमेशा से भी हैं। फिर आ रहे हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक,
फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह दीजिए, रसूल से कह रहा है अल्लाह कि कह दीजिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह चाहता हूँ। सुबह का मालिक कौन है, यानी खुदा की पनाह चाहता हूँ। यहाँ पर एक सिफत बताई जा रही खुदा की कि खुदा सुबह का मालिक है। मिन शर्रि मा खलक, किसी से पनाह चाहते हैं, तमाम मखलूकात के शर से। जो मखलूकात ऐसी हैं जो शर पसंदी करती हैं, जो जुल्म करती हैं, जो ज्यादतियां करती हैं, उनसे जो है वो उनके शर से महफूज होना चाहते हैं अल्लाह की पनाह के जरिए। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और क्या कह रहे हैं, और अंधेरी रात के शर से जब उसका अंधेरा छा जाए, उसके भी शर से जो है वो महफूज रहना चाहते हैं। जो अंधेरी रात के शर से जब उसका अंधेरा छा जाए। उसके बाद क्या है, वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और उन औरतों के शर से जो जादू करती हैं, जो जादू करके दूसरों को जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, उनके शर से भी महफूज रहना चाहते हैं। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और सबसे बड़ी बीमारी जो है हसद की बीमारी है, उनके शर से भी महफूज रहना चाहते हैं जो हसद करने वाले हैं। जब भी वो हसद करें, उनके हसद से हम महफूज रहना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो यहाँ तक हमने बात की थी उस दिन। अब हम सूरह इखलास की तरफ आएंगे, जो कि सूरह फातिहा में भी जब किसी मरहूम को फातिहा पढ़ा जाता है तो सूरह अलहम्द के बाद सूरह इखलास की तिलावत की जाती है। तो हम उसकी तरफ आएंगे, जो अक्सर लोगों को याद है और नमाज में भी हम लोग बारहा इसको पढ़ते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये कुल अल्लाहु अहद हो गया। अब सबसे पहले हम किताब की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद हमने उस दिन जो है कुछ हुरूफ तहज्जी पढ़े, यानी उनका तलफ्फुज भी हमने देखने की कोशिश की, कुछ उनके प्रोनाउंसिएशन को भी देखा और उनकी अलग अलग शक्लें भी देखी थी, फिर किस किस तरीके से वो कुरान में लिखे जाते हैं। अरबी के जो हुरूफ हैं उनका तलफ्फुज जो है, उनके अल्फाबेट्स का तलफ्फुज जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, वो बिल्कुल उर्दू की तरह है, ज्यादा फर्क नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनमें फर्क पाया जाता है तलफ्फुज करने में, उनके प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। कौन से हुरूफ हैं वो है वाव, सा, रा, ज़ा, हा, आइन, गैन, साद, दाद, तो। इनमें फर्क पाया जाता है, उर्दू में और अरबी में फर्क पाया जाता है। उर्दू में इसको नॉर्मली पढ़ा जाता है, जैसे उर्दू में कहते हैं सदर मजलिस, यानी सीन से। अगर अरबी में सदर कह देंगे यानी सीन से पढ़ रहे हैं, तो अरबी में कहना है सदर। तो ये फर्क है। ये हुरूफ जो हैं ये उर्दू से थोड़ा अलग पाए जाते हैं, इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सख्त है और अलग है। और हम इंशाअल्लाह इसको जो है वो आगे समझेंगे क्या है। अब हम बढ़ते हैं हुरूफे मुक़त्तिआ। हुरूफे मुक़त्तिआ कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है हुरूफे मुक़त्तिआ कौन से होते हैं? जी बताइए। जी
आलम जैदी कुरान बताइए। करीम की उन वो हरूफ जिसके मायने न निकल सके हो। हाँ, वो हुरूफ जो है वो 29 सूरों की शुरुआत में आते हैं और उनके माने सिवाय अल्लाह और अहले बैत के कोई नहीं जानता है। अब हम उसके ऊपर आएंगे कि उनको हुरूफ मुक़त्तआ कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इनका जब ये आएंगे तो इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका तलफ़्फ़ुज़ किस तरीके से करेंगे हम। अब मान लीजिए जैसे कुरान में सबसे पहला हुरूफ मुक़त्तआ कौन सा आया है? सबसे पहला अलिफ लाम मीम, जो सूरह बकरा की सबसे पहली आयत है। और हमेशा जिस भी सूरे में हुरूफ मुक़त्तआ आया है वो इब्तिदा में ही आया है, आखिर में नहीं आया है, बल्कि शुरुआत में ही आया है हमेशा। 29 सूरे ऐसे हैं जो आप कुरान में जब जाएंगे, टैली करेंगे, देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन कौन से सूरे हैं। उसके नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला है अलिफ लाम मीम। जब भी ये हुरूफ मुक़त्तआ आते हैं, इन तमाम हुरूफ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं इससे अलग नहीं है, इनके अलावा कोई हुरूफ मुक़त्तआ में इनके अलावा कोई नहीं आता। यानी अलिफ, हा, रा, सीन, स्वाद, तो, आइन, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, या। इनके अलावा कोई हुरूफ मुक़त्तआ में कोई और यूज नहीं होता है, यही यूज होते हैं अलग अलग जगह पे। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ मिसाल दी गई कि अलिफ लाम मीम आया है, तो यहाँ पर तीनों हुरूफ का नाम लेना है। यानी तीन हुरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ है, लाम है और मीम है। यहाँ पर तो तीनों हुरूफ का हम नाम लेके इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, क्या है? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ये तीनों हुरूफ का हमने नाम ले लिया और तीनों हुरूफ का नाम लेके बस इसी तरीके से इसकी तिलावत होनी है और कोई इस तरीके से इसकी तिलावत नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनको पढ़ने की, इन तमाम हुरूफ को भी हमने पढ़ के बताया, इनको इसी तरीके से इन्होंने पढ़ के बताया है। इन्होंने कहा अलिफ, हा, रा, सीन, साद, तो, आइन, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, या। ये तीनों चीजें हैं, इनके नाम जो है वो पढ़ना है। अब यहाँ पर जो है हम आपसे कहेंगे, आप में से हर एक पढ़ के बताएगा कि कैसे पढ़ना। ये तमाम हुरूफ मुक़त्तआत हैं जो कुरान में जिक्र हुए हैं। अब इसमें से सबसे पूछा जाएगा और सब लोग इंशाअल्लाह बताएंगे। आलम जैदी आप पढ़िए सबसे पहला हुरूफ मुक़त्तआ। रहीम, क़ाफ, नून, स्वाद, यासीन, ता, हामीम, तेसीन, तोसीन, अलिफ लाम रे, तो सीन मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ मीम स्वाद, हा मीम, ऐन सीन काफ, काफ है, ये ऐन स्वाद। हमने क्या बताया है? कोई अरबी में हे नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है, बल्कि हा है, वो हा। ठीक है, अब हम पढ़ के दिखा रहे हैं। आपने कहाँ पर यासीन नहीं है, हम लोग मुंह से कह देते हैं सूरह यासीन पढ़ दीजिए। असल में ये नहीं है। या जब आप असलियत में जाके देखेंगे या को किस तरीके से पढ़ा गया, या अलिफ ज़बर या पढ़ा गया, उसका नाम ही या है, यासीन नहीं है। या यानी आपने अलिफ को नहीं पढ़ा। कैसे पढ़ना है? कहेंगे
कैसे पढ़ना है अब हम पढ़ के बता रहे हैं। क़ाफ़ नून क़ाफ़ यासीन ताहा हामीम तासीन अलिफ लाम را रे नहीं है را तासीन मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम را अलिफ लाम मीम صاد حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے کہاں غلطی کی؟ سب سے پہلی بار رے میں غلطی کی، یاسین نہیں بلکہ کیا یاسین، اور کیا ہے، اور یہاں پر بھی ہے کوئی چیز نہیں بلکہ کیا ہے ہا ہے، اس چیز کو خیال رکھیے گا اور صوت کو صحیح کرنے کی کوشش کریے۔ امن نقوی آپ کھولیے مائک، پڑھیے اس کو۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف نون صاد یاسین طٰ حام میم طاسین الف لام را طاسین میم الف لام میم الف لام میم را الف لام میم صاد حام میم عین سین کاف کاف ہا یا عین صاد۔ ایسا کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی غلطی ہو رہی ہے کاف میں۔ آپ کاف اور قاف کو فرق نہیں کر رہی ہیں بلکہ یہ قاف ہے اور کاف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسری غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ را نہیں ہے بلکہ کیا ہے را، را نہیں ہے بلکہ کیا ہے را، تھوڑا سا موٹا کرنا ہے اس کو۔ اور اسی طریقے سے ہا میں بھی جو ہے ہا اور ہا دونوں میں فرق ہونا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ نشاط فاطمہ آپ پڑھیں۔ قاف نون صاد یاسین طٰ حامیم طاسین الف لام را طاسین الف لام میم الف لام میم را الف لام میم صاد حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد۔ احسن۔ ظفر عباس اپنا مائک کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف نون صاد یاسین طٰ حامیم طاسین الف لام را را سین الف لام را الف لام را 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 طاسین میم الف لام میم الف لام
بھی وہ کریے گا کہ رو نکلے، را نہ نکلے بلکہ رو نکلے، یعنی را جو ہے وہ ہلکا سا نکلتا ہے، اور جب رو نکالتے ہیں تو تھوڑا سا زبان کو گول کرتے ہیں، بس جیسے ہی آپ گول کریں گے آٹومیٹک جو ہے آپ کے منہ سے رو نکلے گا. ویسے ٹھیک ہے آگا؟ جی جی بہتر ہے. زیبا سید اپنا مائک کھولیں. نون صاد یا سین تا ہا ہا میم تا سین الف لام را تا سین میم الف لام میم الف لام میم را الف لام میم صاد ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. اب کیا ہے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ غلطی ہو رہی ہے تا اور تو میں فرق ہے. ہمیں کہنا ہے تو، تا نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے تو. پھر اسی طریقے سے سب کی جو ایک غلطی مل رہی ہے، جو سب میں کامن ہو رہی ہے سوائے ایک کے، وہ کیا ہے؟ وہ رو کی ہے. سب لوگ کہتے ہیں را، جبکہ اصل میں ہے رو. اس چیز کو ہمیشہ پریکٹس کریے. اس کو ایک دن میں چیز نہیں صحیح ہو سکتی. آج ہم بتائیں اور کل سے آپ جو ہے سب لوگ رو پڑھنے لگیں، لیکن جب قرآن کو آپ اٹھائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کھولیں گے، پھر اس کو دیکھیے اور وہاں پر دیکھیے سب سے پہلی آیت کو دیکھیے اور پڑھنا شروع کریے، اور بہت غور سے، چاہے جو ہے وہ 1 گھنٹے میں ایک ہی آیت پڑھیے، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گی تب جا کے جو ہے وہ سب کی وہ یہ مشکل ٹھیک ہوگی. یہ ایک دن میں، کیونکہ ایک دن میں جب خراب نہیں ہوئی ہے تو ایک دن میں صحیح بھی نہیں ہو سکتی. یہ بہت سال اس طریقے سے پڑھا گیا ہے، اس لیے آپ کی زبان پہ یہ چیز آ چکی ہے. اب اس کو مٹانے کے لیے آپ کو جو ہے کوئی اچھا وائٹنر لے کے آنا پڑے گا. وہ وائٹنر وہی ہے اس کا، وہ کیا ہے وائٹنر؟ وائٹنر یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن کو دقت سے پڑھیں، غور سے پڑھیں کہ یہاں پر جو بتایا گیا بس یہی پڑھنا ہے. تو جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ سیکھ جائیں گے. اب سورے کی طرف آتے ہیں. آج ایسا سورہ ہے جو تقریباً جو ہے وہ سب لوگ یاد بھی ہوگا اور روز تقریباً پڑھتے ہیں. ہر جمعرات کو ہر نماز میں عموماً پڑھا جاتا ہے، اور مجلسوں میں ایصال ثواب کی مجلس میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس سورے کی بہت تلاوت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ عالم زیدی اپنا مائک کھولیں اور شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ. کیسے پڑھنا ہے؟ پڑھنا ایسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرام سے پڑھیے. قل هو اللہ احد، ہر حرف کا تلفظ واضح ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. مثلا ہم پڑھ رہے ہیں قل، تو میرا واضح ہو رہا ہے کہ لام کہاں پر ہوگا اور قاف کہاں پر ہے. هو اللہ احد. اللہ، یہاں پر اللہ کو موٹا کرنا، اللہ نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لد کہنا ہے. کیوں؟ اگر ایسا نہیں کہیں گے تو اس کا صحیح تلفظ نہیں کیا گیا دال کا. احد، صمد، یولد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. واضح ہو رہا ہے کہ ہم نے دال کو احد 2 بار پڑھا ہے. ایک بار اس کو ملا کے پڑھا، ایک بار اس کو الگ سے اس کی آواز نکالی. امن نقوی آپ کھولیے. امن نقوی اپنا مائک کھولیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس تھوڑی بہت ہے کہ جو آپ کھینچ کھینچ کے تھوڑا سا پڑھتی ہیں اس کو کھینچ کھینچ کے پڑھنے کی پریکٹس کریے کہ نہ پڑھیے، رک رک کے بھلے ہی پڑھیے، کھینچ کھینچ کے نہیں پڑھیے. جیسے آپ ایسا پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس بات کے لیے ٹوکا تھا کہ کھینچ کھینچ کے ملا کے اس طرح کھینچنے کی کوشش نہ کریے. چاہے آپ رک جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رک کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس طرح کھینچ کے اگر آپ پڑھیں گی تو یعنی آپ کہیں پر جو ہے کسی کی علامت کو جو ہے وہ زیادہ کر رہی ہے، اضافہ کرے دے رہی ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا. کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس طریقے سے پڑھنا. ہم ہر کے بعد اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو، جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ بھی سنیں، تاکہ وہ اپنی غلطی دیکھتے رہیں کہاں کام غلط پڑھتے ہیں اور صحیح کرتے رہیں، اور جنہوں نے ابھی پڑھا ہے وہ بھی اپنی غلطی کو دیکھیں، اور جو آئندہ جو پڑھنے والے ہیں جو ابھی بعد میں پڑھیں گے وہ پریکٹس کر وہ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمیں غلطی نہیں کرنی ہے. نشاط فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احسان. دال کو واضح کیا جائے گا. اب ہم پھر سے پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ظفر عباس اپنا مائک کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہاں پر یا کل نہیں ہے بلکہ کیا ہے یکل لہو. یا کل یعنی آپ یا کے ساتھ الف کو پڑھ رہے ہیں، جبکہ یا کے ساتھ الف یہاں پر نہیں لگا بلکہ کیا ہے یکل لہو. تیز سے پڑھنا ہے یکل لہو کفوا احد. ہاں. اور دال کو جو ہے وہ واضح کرنا ہے احد احد احد. آخر میں ہم 2 بار دال کو پڑھتے ہیں، ایک ہا کے ساتھ دال کو ملاتے ہیں. ہاں واضح کرنا ہے، یعنی کھول کے پڑھنا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیکھا ہم نے کیسے کھول کے پڑھا دال کو. جی. زیبا سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احد احد. تھوڑا سا دال کو واضح کریے. ابھی رسن آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد.
कुफुवन अहद। 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 हाँ, जैसे क्या हुआ, अब इतने दिन में 3 क्लासों के बाद इनके अंदर क्या फर्क आया कि ये बिस्मिल्लाह को जो है बहुत ज्यादा घुमाती थी, तो आज इन्होंने सिंपल पढ़ दिया और वो चीज सही भी पढ़ दी। जैसे ये पहले कुछ और तरीके से पढ़ती थी, लेकिन अब की इन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्होंने सीधे ला कह दिया, यानी जो असली है वो ला है। वो जब बहुत ज्यादा जो वो करने की कोशिश करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इतने दिन में इनको ये समझ में आया कि लाम को बिस्मिल्लाह में जो है वो सीधे सिंपल लाम को पढ़ना है। ये क्लास का फायदा हुआ। बस अब आपको कहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि अल्लाह कहना है, अल्लाह मोटा करना है, अल्लाह, जैसे कहते हैं अल्लाह अल्लाह, बस वही वाला अल्लाह कहना है, थोड़ा सा मोटा करना है, यानी जबान पे थोड़ा सा जोर लगाना है। नीचे की तरफ जब जबान पे थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो जबान पे जब नीचे की तरफ थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो मोटा करके निकले अल्लाह अल्लाह। दांत पे जब थोड़ा सा जोर लगाइए, दांत को जब अपनी जबान को जो है वो दांत पे जब मारेंगे जोर से तो आएगी अल्लाह, तो अल्लाह होगा। अब आखिर में हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके तर्जुमे की तरफ आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या तर्जुमा है? अजीम और दाइम रहमतों वाले खुदा के नाम से। जी, अजीम और दाइम यानी क्या? यानी जिसकी नेमतें कभी खत्म नहीं होती। वो तो दाइम का हो गया, अजीम का क्या मतलब? यानी वो बड़ा है, यानी उसकी नेमतें बड़ी हैं, बहुत बड़ी। हाँ, उसकी नेमतें बड़ी, बुजुर्ग है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरह को सूरह तौहीद की कहा जाता है, इसमें अल्लाह की तौहीद को बयान किया गया है। कह रहे ए रसूल कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अहद यानी एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बरहक है और बेनियाज है, यानी उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है और वही हक भी है। हक जो चीज निकलती है वो उससे ही निकलती है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी ना कोई औलाद है और ना वालिद है, यानी ये किसके लिए है? ये जो ईसाइयों ने जो है वो अल्लाह का बेटा जो है हजरत ईसा को बता दिया, वहां यहाँ पर आके उसकी नफी की जा रही है, मना किया जा रहा है कि उसकी कोई औलाद नहीं है और उसका कोई बाप भी नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसका कोई कुफू है, यानी उसका कोई बराबर नहीं है। कुफू यानी बराबरी, उसकी कोई बराबर नहीं है और ना उसका कोई हमसर भी नहीं है। तो अल्लाह के जरिए जो है चीजें जो अल्लाह के लिए जो लोग जो है वो करते हैं, उसकी यहाँ पर नफी की जा रही कि अल्लाह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो अल्लाह को। तो उसका ना कोई बेटा, वो किसी चीज की उसको जरूरत नहीं है कि तुम समझ रहे हो उसके लिए जो है उसको खाना ला के देंगे, फिर जो है वो उसको जो है हमारे गजा की मोहताज रहेगा, उसको जो है हमें जो है उसको साए में रखना पड़ेगा। ये सब चीजें तुम्हें जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस चीज की बात की गई जो तमाम दूसरे मज़ाहिब जो अल्लाह का तसव्वुर रखते हैं उसकी यहाँ पर नफी की जा रही है कि जो तुम समझ रहे हो, जो तुम लोग काफिरों कहा जाए, तुम लोग जो अल्लाह को समझ रहे हो वैसा अल्लाह नहीं है, वो अलग है। तुम किसी और को, तुम गलत को जो है वो अल्लाह समझ बैठे हो। तो इसको सूरह तौहीद भी कहा जाता है। और कोई सवाल अभी तक जो बात बताई गई है?
क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह आप सब लोग जो है वो ढूंढ के लाइएगा, कोशिश करिएगा ढूंढने की कि कुरान में कितनी आयतें हैं। किसी को मालूम है कुरान में कितनी आयतें हैं? कोई बता सकता है? किसी को नहीं मालूम है? आलम जैदी जी, अबीर हसन बताइए। 5000 कुछ है। 5000 कुछ है। तो ये कैसे आपको पता चला 5000 है? ये हमने हदीस में सुना था। और किसी को मालूम है कितनी आयतें हैं? जी बताइए। 6999। ये कहाँ से आपने पढ़ी ये वाला, ये जो आपने बताया गिनती? अगर पक्का कंफर्म नहीं है लेकिन थोड़ा जहन में है, शायद इतनी ही याद नहीं है पक्का, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है इस चीज को। हाँ कंफर्म नहीं है। जी। और किसी को मालूम है? अमन नकवी, जफर अब्बास, रेबा सैयद, किसी को मालूम है कुरान में कितनी आयतें हैं? ये आवाज 6666। ये कहाँ से आपने ये वाला फिगर लिया है? ये कहाँ से आपको मालूम हुआ कितनी आयतें? मैंने पहले कहीं पढ़ी थी, बस मैं अच्छे से याद नहीं है। हाँ, वो तो कल जो है वो आप सब लोग जो है कोशिश करिएगा कि खुद कुरान में गिनिएगा कि कितनी आयतें हैं। अगर या कहीं पर अगर पढ़ा है, कहीं पर आप पढ़ सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, कल इस सवाल का जो है वो जवाब लेके आइएगा। अब देखते हैं कौन जो है वो इस सवाल का सही जवाब लेके आता है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि इसका जवाब पूरे तकरीबन पूरे इंडिया में जो है वो अक्सरियत लोग जो है वो गलत फिगर देते हैं कुरान की आयतों का। तो अब देखना है कि आप लोग जो है वो कैसे कहाँ से जो है निकालते हैं, और सही जवाब अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर सुनिए ना, अभी तक किसी ने भी जवाब एक भी सही नहीं है उसमें से। जी अभी तक जिसने भी जवाब दिया है एक भी सही नहीं है उनमें से। नहीं, किसी का सही नहीं है। अगर किसी का सही होता तो हम बता देते कि हाँ इस शख्स ने सही कहा है, और तभी हमने आप सबसे कहा कि आप लोग तहकीक करिएगा, तो तहकीक करके जो है वो बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कुरान मजीद के जो हुरूफ हैं और अल्फाज हैं वो हमने पढ़ लिए, और उनका तलफ़ुज़ भी जो है बहुत हद तक जो है हमने कोशिश की है कि हम लोगों ने याद किया है कि किसका क्या तलफ़ुज़ होगा। ठीक है, अब आते हैं आवाजों के ऊपर, साउंड्स के ऊपर, क्योंकि साउंड्स जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि खाली हुरूफ मुक़त्तिया ऐसा है जहां पर साउंड की जरूरत नहीं, बल्कि उसका खुद नाम बोला जाता है। जैसे अलिफ कहते हैं, अलिफ लम मीम, यहाँ पर कोई साउंड की जरूरत नहीं, जबर जेर किसी चीज की भी जरूरत नहीं कि किसी को कितना चिल्लाना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ई पढ़ना है या ऊ पढ़ना है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। बल्कि लेकिन जब हुरूफ मुक़त्तिया में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन खाली हुरूफ मुक़त्तिया तो खाली 26 सूरों में वो भी एक एक आयत है। तो बाकी कुरान जो है वो कैसे पढ़ा जाए, उसके लिए जो है हमें बाकी हुरूफों को किस तरीके से अदा करें, कौन सी आवाज की मदद लेंगी, इसकी जो है हमें जरूरत होगी। यहाँ पर साउंड की, उसकी आवाजों की जरूरत होगी। तो आवाजें जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है छोटी आवाजें और एक होती है बड़ी आवाजें। छोटी आवाजें क्या है? जिन्हें हरकत कहा जाता है, और जो बड़ी आवाजें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? हुरूफे मद्दी कहा जाता है, यानी जिसमें ज्यादा खींचना होता है। तो हम सबसे पहले जो है वो छोटी आवाजों की तरफ आएंगे। छोटी आवाजें कौन कौन सी हैं, कोई बता सकता है?
जो छोटी आवाजें हैं, जी बताइए। फतहा, कसरा, जमा। हाँ, फतहा, कसरे और जम्मे, ये तीन है। यानी जिसको हम लोग उर्दू जबान में कहते हैं जबर, जेर, पेश। इनको हरकत भी कहा जाता है। ये हरकतें हैं तीन जो कही जाती हैं। और जब बड़ी आवाजें होती हैं उनमें हुरूफ मद्दी कहा जाता है उनको। अब हम चल के उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब हम सबसे पहले फतहे की तरफ आएंगे, यानी जबर, जिसको हम लोग कहते हैं जबर। अब सब लोग जानते हैं, तकरीबन जितने भी क्लास में हैं सब लोग जबर से आशना। हो सकता है कोई फतेह ना जानता हो, क्योंकि अक्सर फतेह जो है वो अरबी और फारसी में कहा जाता है फतह। उर्दू में हम लोग जो है वो जबर कहते हैं। और वो जबर जो है वो सब लोग जानते हैं जबर में क्या होता है। जबर जब भी होता है तो यहाँ पर जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, यहाँ पर बहुत से लोग इस पे क्या कर रहे थे, यकुल्लहू कह रहे थे, बल्कि यहाँ पर क्या है यकुल्लहू। क्यों? क्योंकि ये छोटी आवाज है, यहाँ पर खाली फतहा लगा हुआ है, जबर लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर कुल, ये नहीं कह रहे थे, कुल नहीं कह रहे थे, बल्कि क्या कह रहे थे, कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेश लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कह रहे थे, बिस। क्यों बिस कह रहे थे? क्योंकि यहाँ पर जबर लगा हो। बीस नहीं कह रहे थे। क्यों नहीं कह रहे थे? क्योंकि यहाँ पर छोटी आवाज है, जल्दी पढ़ना है, हमें रुकना नहीं है यहाँ पर। हाँ, जब यहाँ पर क्या कर रहे थे, मीम के साथ क्या कर रहे थे, खड़ा था तो हम खींच रहे थे, रहीम। रहीम क्यों कह रहे थे? यहाँ पर क्या है, कोई बता सकता है? रहीम क्यों खींच रहे थे हम लोग? कोई बताएगा रहीम में क्यों खींच रहे थे हम? रहीम जो है वो क्यों खींच रहे थे रहीम में? या की वजह से, या। और अगर या वाले हुरूफ में कसरे होगा तो उसको खींच के पढ़ेंगे। बस इसी को कहते हैं हुरूफे मद्दी के। एक या के साथ अगर जेर आ गया तो उसको खींच के पढ़ना है, यानी हुरूफे मद्दी आ गया है। इसी तरीके से अगर अलिफ आया है और उससे पहले जबर आ गया है तो उसको भी खींच के पढ़ना है, इसको कहते हैं हुरूफ मद्दी। इसी तरीके से अगर वाव आया है और उससे पहले पेश आ गया है तो हमें उसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। वाव साकिन हो और उससे पहले क्या हो, उससे पहले पेश आ गया हो, वहां पर हमें खींच के थोड़ा पढ़ना है। अब समझ में आया हुरूफ मद्दी क्या होते हैं? बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, बस हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए ऐसा है। अब यहाँ पर हम फतेह की बात कर रहे हैं, सब पे जबर होगा तो यानी हमें कहना अ, ब, ता, सा, ज, ह, ख, द, ज, र, ज, स, श, प, प, त, वो, आइन। आइन का क्या होगा? अ, ग, फ, अ, क, ल, मीम। मीम का क्या होगा? म, न, व, ह, या। यानी छोटी छोटी आवाजें निकालनी, ऐसे नहीं कहना या, वा, नू, ना, मा, ऐसे नहीं कहना, बल्कि धीरे धीरे आवाजें निकालनी है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? जबर, यानी छोटी हरकत है। जबर जब भी आएगा तो यानी छोटी हरकत है। अब यहाँ से जो है पढ़ना शुरू करें सब लोग। सबसे पहले अबीर हसन यहाँ से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? अबीर हसन, आलम जदी आप पढ़ें। लका, मा, जी, बताला, बताला नहीं है, बल्कि क्या है? सकाता, बताला क्या है? बतला,
बतला, बतला, जी बतला, जी, सकाता, सकता, बताना, सकता, ज़हरा, इसको देखिए, इसको पहले देखिए, सकता, जी सकता, बताना, ज़हरा, फवक, फवक्का, फवक़ा, ज़लामका, फवक्का, ज़लामका, ज़लमक, ज़लमका, फ़ख़ालफ़ा, फखलफ, फ़ख़लफ़ा, फखलफ, फ़ख़लफ़ा, एहसान, जल्दी जल्दी पढ़ना देखिए। सेकंड नंबर पे अमन नकवी, लका मा सकता ये देखिए ये कहाँ से बतला, फवक्का ये देखिए पहले बतला, बतला सकता बतना ज़हरा फवक्का ज़लमका फखलफा फखलफ, फखलफा। एहसान, निशात फातिमा, लका मा बतला सकता बताना ज़हरा फवक़ा ज़लमका फख़लफ़ा फखलफ, फख़लफ़ा। जफर अब्बास, लका मा बतला बतला बतला, बतला, बतला सकता सकता, ज़हरा सकता ज़हरा फरका ज़लमका फवक़ा ज़लमका फवक़ा, फवक़ा ज़लमका फखलफा। ये क्या है? बताना बतना, ज़ेबा सैयद, लका मा बतला सकता ज़हरा फवक़ा ज़लमका फख़लफ़ा। ये क्या है? ला का नहीं बल्कि क्या है? लका, लका जैसे कहेंगे लकुम दीनकुम, लकुम कहते हैं, लका मुंह नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? लकुम दीनकुम। इसी तरीके लका है ये। फिर ये क्या है? मा है, यानी हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसमें अलिफ को इजाफा नहीं करना। ला का अगर कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर अलिफ आ गया, जबकि यहाँ पर अलिफ नहीं है, फकत जबर है। जबर जब भी आएगा तो यानी छोटी अलामत है, छोटी आवाज निकलेगी, जल्दी से पढ़ना है। इसी तरीके से ये क्या है? ये क्या है? महा। ये क्या है? बतल। ये क्या है? बतला बतल। ये क्या है? सकत, सकत, सकता सकत। सकता साकाता नहीं है बल्कि क्या है? साकाता नहीं है बल्कि क्या है? सकता। सकता जी, ये क्या है? बतना। ये क्या है? ज़हरा 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 फवक़ा फवक़ा
ظلمك فخلف احسان. ابیر حسن آپ پڑھیے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکا مع بدلا سکتا بدنا فوقع 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 وقع وقع فوقع 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 ظلمك فخلف ٹھیک ہے. ظہر ظہر. یہ ہو گئی چھوٹی حرکتیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم لوگوں نے آج چھوٹی آوازوں میں زبر کو پڑھا ہے. انشاءاللہ کل جب آئیں گے تو کل جو ہے وہ زیر پہ آئیں گے اور زیر کو جو ہے وہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ زیر میں جو ہے وہ کیسی آوازیں نکلتی ہیں جس کو کسرے بھی کہا جاتا ہے. عربی میں اس کو کسرے کہا جاتا ہے, اردو میں ہم لوگ زیر کہتے ہیں. اور کوئی سوال ہو تو جلدی جلدی پوچھ لیجئے سب لوگ. آغا میرا ایک سوال ہے. جی بتائیے. جیسے ہم غسل کرتے ہیں, مطلب کسی بھی طرح کا غسل کرتے ہیں اور لوٹے میں پانی مطلب اتنا ہے کہ ہم نے غسل کر لیا, پانی ڈال لیا جیسے دائیں حصے پہ, پھر بھی ہمیں شک ہے کہ تھوڑا سا جسم کا حصہ کوئی رہ گیا تو تھوڑا پانی ہے لوٹے میں, تو پانی ملا سکتے ہیں اس میں؟ شک ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر شک نہیں ہے کنفرم ہے تب ملا سکتے ہیں, ورنہ نہیں ملانا ہے. اچھا. اور آغا ایک سوال یہ ہے میرا, پلاسٹک کا برتن پاک ہو سکتا ہے؟ جی پاک ہو سکتا ہے. اچھا شکریہ. اور کسی کو کوئی سوال؟ کوشش کیا کریں یہ سب سوال پرسنل پہ میسج سے پوچھ لیا کریں, کلاس میں نہ پوچھا کریں. کیوں؟ کیونکہ کلاس جو ہے وہ قرآن کی ہے, احکام کی کلاس نہیں ہے. دوسرے اور کسی کو کوئی سوال؟ تو کل کا سوال سب لوگ یاد رکھیے گا کہ کل سب کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے کے آنا ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں. جن کو کنفرم نہیں ہے ان کو کنفرم کرنا ہے, اور جن کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم کر کے لانا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کون کتنا فگر لے کے آتا ہے, یعنی کس کو کتنا پتا ہے. یہاں پر سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی کون سے جو ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, پھر آگے کی بات اس کے بعد شروع ہوگی. کل یاد رکھیے گا سب لوگ کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, سب کو لے کے آنا ہے اس کا جواب. پھر دیکھیں گے کس کا صحیح جواب ہوگا. اور کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ہم آخر میں یہ سورہ دوبارہ پڑھ لیں, سورہ اخلاص, اس کے بعد پھر کلاس کو ختم کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا حافظ, فی امان اللہ.